Hello people, I hope you are doing fantastic, great. And in the past lecture, I have talked about the 8.1, even if the basic concept introduction about the trigonometric. The most important, I have discussed about the trigonometry ratio and more regarding that. Lots of question I have discussed in 8.1 even. But in this particular lecture, I will be talking about entire 8.2. I will be doing entire 8.2 of NCERT question, and the most important, the trigonometry table, trigonometry angles. All right, बच्चे बहुत होते हैं that sir हमें याद कर कैसे करना है, we cannot memorize, we cannot remember the trigonometry table, the trigonometry values. But I promise children that after the video get over, everything will be fixed automatically inside your brain. That doesn't mean तुम अभी मूवी देख रहे हो कि मेरा वीडियो देखो, ऐसे नहीं. You have to remain stick to the point. You have to make it a notes. You have to write in a pen and paper to make it a complete understand. If you want to understand, you have to take a pen and paper and you have to understand pretty well, right? Acha, without making any delay, let the video get started. The student, those who have not watched the lecture number 1, do watch it. Very important concept I have talked over here. As you know people very well that the mathematics students is divided into two category, like standard and basic. In the standard, in the particular trigonometry, standard बच्चों का 5 मार्क का क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा. सॉरी, स्टैंडर्ड बच्चों को 4 मार्क का सवाल पूछा जाएगा. इन बीच बेसिक बच्चों को 5 मार्क का सवाल पूछा जाएगा. किनमें से? चैप्टर नंबर 8. दैट मीन्स चैप्टर नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन टू यू, राइट? अच्छा, एज आई प्रॉमिस्ड बिफोर, हम कुछ तुमसे वादा किए थे कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेगा. यस, इट विल. सी, as you know very well, something I have written over here, that trigonometric ratio का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल साइन का वैल्यू क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल p upon h, as I can even write as the p is to h. This is all about a ratio, right? Trigonometric ratio is all about this, p is to h. So I can even write as the p upon h. That in that particular video I was talking about trigonometric ratio, but here I will be talking about trigonometric table, the values of the trigonometry, right? अच्छा, so पहला पढ़ाओ, level number 1. What shall I say? You have to remember the sign values. I repeat, you have to remember the sign value. Sign value को remember रखना है, याद रखना है. कैसे याद? हमें तुम्हें याद रखा, हमें तुम्हें अभी याद करवा देंगे. देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, याद आ गया. साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0. दैट मीन्स इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, यू विल से साइन 0 0. साइन 30 डिग्री इज ऑल अबाउट 1/2. Sin 30 is all about 1/2. The most important, now the concepts, the most important that sin 45 degree cos 45 degree का वैल्यू आता है 1/√2. 1/√2. That means if I say sin 45 degree is all about 1/√2, cos 45 degree is also 1/√2. ऑल राइट, इतना तो समझ में आ गया होगा. मतलब cos sin 45 का मतलब भी 1/√2 होता है बच्चों. cos 45 का डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2, विच इज सिमिलर टू ईच अदर. ये दोनों सिमिलर होता है. अच्छा, अगर ये दोनों याद रह गया, अगर ये तीनों मतलब tan 45 भी होता है, हम थोड़ा 2 मिनट के बाद बताएंगे. अगर ये 45 डिग्री याद हो गया तो 50% प्रॉब्लम यू हैव डन. 50% ट्रिगोनोमेट्री टेबल तुम्हें याद रह गया. क्या क्या याद रखना है बच्चों? हमारे साथ बोला करो. साइन 0 डिग्री इज ऑल अबाउट 0, राइट? साइन 30 डिग्री 1/2, उसको खाली आधा करना है 1/2. दिस मच यू हैव टू अंडरस्टैंड. tan 45, सॉरी, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री, इसको थोड़ा याद रखना. दैट इज ऑल अबाउट √3/2. √3/2. इज इट क्लियर? 0 डिग्री 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है बच्चों? 1. 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 1. आई रिपीट, साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अभी बताओ जल्दी. दैट इज ऑल अबाउट 1/√2. हमारे साथ बात भी क्या करो, 1/√2. अच्छा, उसको अभी क्या करना पड़ेगा? नाउ व्हाट वी विल डू, दिस वी विल बी टोटली उसको उल्टा कर देते. उल्टा मतलब 90 डिग्री ऑफ 1 विल कम हियर, √3/2 ऑफ 60 डिग्री विल कम हियर, √3/2. √45 डिग्री का 1/√2, देन आफ्टर दिस 30 डिग्री विल कम हियर. 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 विल कम हियर. 0 डिग्री यहां पे आ जाएगा. आई बात समझ में? आई बात समझ में? दैट मीन्स हियर यू अंडरस्टूड अबाउट साइन एंड कॉस, राइट? अच्छा, now which you don't know yet, that is all about tan equals to sin upon cos, which you will be reading in 8.4. sin upon cos 8.4 में करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, दैट इज sin equals to tan equals to sin upon cos. कैसे होता है देखो बच्चों, देखो साइन का ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? p upon h upon cos is all about b upon h.
सो एच एंड एच गॉट कैंसल विच इज ऑल अबाउट पी अपॉन बी। आई बात समझ में, यहाँ का तो वैल्यू पी अपॉन बी आ गया ना। सो इफ आई कैन से tan 45 चिल्ड्रन, लुक हियर, tan 45 डिग्री इज ऑल अबाउट बेटा, दैट इज tan 45 डिग्री इज ऑल sin 45 डिग्री 1/√2 बटा, सो cos 45 डिग्री value is all of your formula, cos 45 1/√2, so √2 get cancel, everything got cancel, which is all about 1, that I got over here is 1. Is it clear? Then what we did, what we concluded here, that conclusion क्या मिला? Excuse me please. What we concluded here, that we concluded that sin 45 degree is 1/2, cos 45 degree is 1/2, याद रहा, tan 45 degree is 1, tan 45 डिग्री इज 1। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ नहीं, खाली इसको काट कूट दो बेटा। tan का क्या है, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos tan है, sin अपॉन cos मतलब इसको डिवाइड करना है बेटा, 1/2/3/2, 2 गॉट कैंसल, कुछ मिल गया इस प्रकार, 1/√3 कुछ मिल गया इस प्रकार, दो कैंसिल हुआ बेटा, 1/3। अरे भैया देखो ना यहाँ पर 1/2 बटा वो √3/2 विच इज ऑल अबाउट 1/2 इंटू 2/√3, 2 गॉट कैंसिल, 1/√3 वैल्यू। अच्छा, √3/2 2 कैंसिल विच इज ऑल अबाउट √3। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? देन आफ्टर tan का उल्टा क्या होता है, व्हाट इज द उल्टा ऑफ tan, व्हाट इज द उल्टा ऑफ tan? कैन एनीवन से दैट इज अ cot, दैट इज अ cot। अगर cot अगर nd मींस नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0, 1/0, 1 डिवाइडेड बाय 0 थोड़ी ना कुछ होता है, दैट इज nd स्टैंड फॉर नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर व्हाट डिड आई से, साइन ऐसे होता है, साइन का देन आफ्टर cos कमिंग हियर, अगेन tan इज हियर, अगेन tan का उल्टा आ जाता है, nd ओवर हियर इज अगेन हियर इट कम nd, राइट, √3 विल कम हियर, √3, 1 will remain the 1, okay, that means 1/√3 will remain 1/√3. Is it clear that what we concluded here, that sin 45 degree is 1/√2, cos 45 degree is 1/√2, tan 45 degree is 1, cot 45 degree is 1. This much we understood. इतना कर लो, उसके बाद कैसे तरीका ट्रिक बताते हैं हम कराएंगे इसके बाद। देन आफ्टर sec, sec किसका उल्टा होता है बच्चों, जल्दी बताओ, sec किसका होता है, cos का होता है। व्हाट इज द cos, cos ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू का क्या होता है बेटा, cos ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का टेबल, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल इज द cos, कम ऑन सेमी, एनीवन, b अपॉन h। इन द सेम वे sec इज ऑल अबाउट h अपॉन b, इन द सेम वे इसका उल्टा होता है, राइट। देन आफ्टर व्हाट, सी cos इज 1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, राइट। देन आफ्टर √3/2 चेंज कर देते हैं, 2/√3। आई बात समझ में, 1/√2 cos 1/√2, √2/1 विच इज ऑल अबाउट √2, लिख सकते हैं, √2/1 इज ऑल अबाउट √2। देन आफ्टर cos 60 डिग्री 1/2 विच इज ऑल अबाउट 2। आई बात समझ में। देन आफ्टर sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0 डिग्री उल्टा करते हैं, nd नॉट डिफाइंड होगा बेटा। देन आफ्टर साइन का ऑपोजिट इज cosec, राइट, साइन ऑपोजिट इज cosec, p अपॉन, फॉर एग्जांपल p अपॉन h इज ऑल अबाउट h अपॉन p, साइन इज ऑल अबाउट p अपॉन h, cosec इज ऑल अबाउट h अपॉन p, राइट। अच्छा, देन आफ्टर चिल्ड्रन व्हाट आई कैन से दैट sin 1/2 आई कैन इवन राइट डायरेक्टली एज 2, 1/√2 कैसे √2 लिख सकते हैं यहाँ पर। देन आफ्टर √3/2 इज ऑल अबाउट बेटा 2/√3, 2/√3, 1 will remain 1 over here, right? Is it clear? अच्छा, this is the basic concept you understood. Now you might be thinking, sir अभी तो ऐसे वाला एग्जाम में अगर कुछ डायरेक्टली गिर गया like sin 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री, तो करना कैसे बताते हैं बच्चों, बताते कैसे करना है। देखो एक सवाल लेते हैं यहाँ पर, एक एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं, देन आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड। और सर इज वेरी इजी, एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं बच्चों। देखो ये वादा है हमारा कि तुम सब कुछ कर लोगे अभी के अभी। Oh my, what happened over here? Excuse me, something wrong. अच्छा, उसको बाद में देख लेंगे। चलो, then evaluate. What is there? Exercise 8.2 number 1 question is there, that evaluate between that. Let me see over here. Sin 60 degree, cos 60 degree, sin 60 degree, cos 30 degree plus sin 30 degree, cos 60 degree. Is it clear? We have to evaluate. Now you might be saying, sir ये तो टेबल है, तुम आप टेबल देख कर लोगे, हम टेबल नहीं देखेंगे, डायरेक्टली करेंगे। देखो बच्चों, देखो क्या होता है। What did I say in the very beginning? I said that साइन का हमेशा टेबल you have to memorize. साइन का टेबल तो मेमोराइज करना। क्या होता है, 0 1/2, 0 1/2, 1/√2, √3/2 का एक होता है 1, राइट। sin 30 डिग्री you have to memorize. After that
साइन 60 डिग्री का क्या होता है बच्चों? देखो साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/2, 1/√2. दैट मीन्स व्हाट वी अगेन, दैट मीन्स 4 रूल्स तो तुम अभी क्लियर हो गए. 4 का वैल्यू दैट साइन 45 डिग्री इज 1/√2, cos 45 डिग्री इज 1/√2, tan 45 डिग्री इज 1, cot 45 डिग्री इज 1. सी 1/√2 इज गिवन. देखो बच्चों 1/√2, यहां अगर रूट 60 डिग्री क्या हो जाता है? √3/2. सी √3/2. अच्छा, अब आया असली कॉन्सेप्ट. नाउ इट इज अ रियल कॉन्सेप्ट. दिस इज ऑल अबाउट, सी sin 60 degree is √3/2, but now I will be talking about cos 30 degree. cos 30 डिग्री क्या होता है हमेशा बच्चों? अगर sin 60 डिग्री यहां पर होता है √3/2, cos 30 डिग्री यहां पर हो जाएगा √3/2. Is it clear? If I will be talking about children, what would be like, if I will be talking about right now, children, so let's say cos 60 degree. What is the value of a cos 60 degree? cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू वही होता है. आई रिपीट, cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है. cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है. sin 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू वही होता है. इज इट क्लियर? दैट मीन्स अगर के बच्चा को याद में ना आया एग्जाम में, अगर बच्चा को याद ना आया एग्जाम में, फॉर एग्जांपल उसको याद है, ही ओनली रिमेंबर दैट sin 60 डिग्री, आई कैन रिमेंबर sin 60 डिग्री √3/2. अगर वो sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री इजीली cos 30 डिग्री का वैल्यू इजीली याद रख सकता है. दैट इज ऑल अबाउट अगेन इनटू √3/2. इज इट क्लियर? बिकॉज sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 60 degree is equivalent to cos 30 degree. Cos 30 degree is equivalent to sin 60 degree. Sin 30 degree is equivalent to cos 60 degree. Cos 60 degree is equivalent to sin 30 degree. Is it clear to everyone? Then plus, देखो बच्चों sin 30 degree. What is the sin 30 degree? देखो 1/2. अच्छा sin cos 60 degree क्या होगा बच्चों? Cos 60 degree is all about 1/2 also. चलो कुछ इस प्रकार में. Then after √3 into √3, 3/2 plus 1/2, which is all about 2 is the LCM, 5/2 is the answer. Done. √3 into √3/3 to 2 into 2, which is all about a 4. Sorry for the error. 4, which is all about a 2. Again here is a 4, right? 4/4. Again 4/4 is all about a 1. Is it clear? I think the concept is pretty clear too. Let us start with the example number 2. See children, again bit 2. The question is all about bit 2 that 2 tan square 45 डिग्री. सिंपल एंड स्ट्रेट. थोड़ी तो देर में बताया था ना. 1/√2 इज ऑल अबाउट sin 45 डिग्री, 1/√2 इज ऑल अबाउट cos 45 डिग्री, tan इज ऑल अबाउट 1, राइट? अगर तुम्हें याद ना आया tan 45 डिग्री का क्या करना है बच्चों? सिंपल, tan सर बताए थे, tan का sin/cos, sin का तो याद है, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, कैंसिल में हो गया, विच इज ऑल अबाउट 1. दैट मीन्स 2 into 1 whole square. 2 into 1 whole square. Why it is 1 whole square? Tan square 45 डिग्री. That's the reason. Plus cos 30 डिग्री. What did I say again? थोड़ा पास्ट लेक्चर में अभी 2 मिनट पहले बताया था कि sin cos 30 डिग्री एग्जाम में आ गया, which you have forgotten. Oh my goodness, sir, you have forgotten the value, but you have remembered the value of a sin 60 degree. Sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या? What did I say? साइन का सब याद रख लो बेटा. 0, 1/2, 1/√2, √3/2. दैट इज ऑल अबाउट 1. लास्ट में होता है 1. इतना याद रख लो. sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना? √3/2. sin 60 डिग्री. What did I say? sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, राइट? अच्छा, sin 60 डिग्री वैल्यू इज ऑल अबाउट √3/2, cos 60 डिग्री हो जाएगा √3/2. अच्छा, वेरी इजी. माइनस sin 60 डिग्री, अगेन sin 60 डिग्री वैल्यू इज ऑल अबाउट √3/2 होल स्क्वायर. सिंपल एंड स्टार्ट. अभी काटा कोटी स्टार्ट. 1 * 1 इज ऑल अबाउट 2, विच इज ऑल अबाउट 3/2, विच इज ऑल अबाउट 3/2. 4, राइट? 4. देन आफ्टर 4 इज द एलसीएम, राइट? Then after 4 is the LCM. Then after I will be doing like that. 4, 8, right? Then after पता नहीं कैसे करता. 4 divided by, यहाँ पर 1 है ना, 4 divided by 1 is all about 4 into 2 is 8, 8 plus 3 minus 3/4, which is all about 7, I think 8, sorry plus है ना, 8, 9, 10, 11, 11/4 minus 3/4. This is all about 8/4, which is all about 2 is the answer. Is it clear everyone? Children, please note it down as soon as possible. जल्दी नोट करो बेटा. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बीट 3 करते हैं.
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बीट 3 करते हैं, प्लीज नोट करो इसको। बीट 3 का क्या है क्वेश्चन बेटा, देखो यहाँ पर बीट 3 cos 45 डिग्री, व्हाट एवर I'm saying everything is पेज नंबर 187 NCERT एक्सरसाइज 8.2 cos 45 is cos 45 डिग्री अपॉन, ये वाला क्वेश्चन सवाल आता नहीं एग्जाम में, एग्जाम क्या आने वाला हम वो भी बताएंगे, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट, डू नॉट वरी अबाउट दैट। sec 30 डिग्री, अब आया कुछ मामला प्लस cos 30 डिग्री, see very important, very interesting, again cos 45 degree, my goodness yaar, cos 45 degree, I don't want to repeat again, what is the answer, right? Then after sec 30 degree, अरे भाई sec 30 degree I also don't remember, हम भूल गए sec 30, हमें कैसे रिकॉल करना है sec 30 degree, हमें पता है sec किसका उल्टा है बेटा, what is the opposite of a sec, that is all about a cos, अगर cos 30 degree का वैल्यू मिल जाए अभी cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री, व्हाट इज द cos 30 डिग्री, ओ माय गुडनेस, cos 30 डिग्री का वैल्यू भी तुम्हें पता नहीं, अरे बाबू आई हैव टू टेक इट आउट sec 30 डिग्री, बट sec 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं, हमें वैल्यू पता नहीं sec 30 डिग्री का। अच्छा sec किसका अपोजिट होता है, sec किसका अपोजिट होता है ना, cos का अपोजिट होता है, अरे भाई cos का अपोजिट होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू भी हमें पता नहीं, cos 30 का वैल्यू भी हमें पता नहीं, बट वन थिंग आई सेड यू हैव रिमेंबर्ड, दैट इज आई सेड साइन का हर डिग्री को याद करो, साइन का हर वैल्यू को याद कर लो, क्या बेटा 0 1/2 1/√2 √3/2, दैट इज √3/2 एंड एट द लास्ट इज 1, राइट। अच्छा साइन 30 डिग्री यू डिड नॉट रिमेंबर, साइन 30 डिग्री डिड नॉट रिमेंबर, साइन का अपोजिट cos 30 डिग्री अगेन यू डिड नॉट रिमेंबर, यू हैव फॉरगॉटन, बट What did I say? Sin 30 डिग्री जो होता, सॉरी sec 30 डिग्री का अपोजिट होता है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का, देन आफ्टर व्हाट डिड आई से, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, देन आफ्टर अगेन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 30 डिग्री, दिस आल्सो आई हैव सेड, राइट। अच्छा बेटा दैट मींस sec 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं, cos 30 डिग्री का वैल्यू पता नहीं, मगर हमें cos 30 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री हमें ये पता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है बेटा √3/2, बात मिल गया ना, √3/2, इज इट क्लियर, √3/2 इज sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री भी हो जाता है √3/2, cos 30 डिग्री √3/2 मींस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री अपोजिट हो जाता है sec 30 डिग्री √3/2, आई बात समझ में, आई बात समझ में, अगर गलती होगा ना यहीं पे, यहाँ ऐसे मत करना बच्चों, ऐसे मत करना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि व्हाट डिड आई से, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेटा √3/2, राइट, बट व्हेन इट विल बिकम अपोजिट sec 30 डिग्री देन इट विल बिकम 2/√3, 2/√3 उल्टा हो जाता है ना बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री इज ऑल अबाउट अगेन √3/2, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, अगेन यू हैव टू डू, सॉल्व करो, सवाल लगाओ, सॉल्व करो, क्या सॉल्व होगा अभी बच्चों, देखो यहाँ पर अभी सॉल्व करो, सॉल्व करने से कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा 2/√3, अच्छा देन आफ्टर 1/√2, इसका एलसीएम निकालो 2/√3, देन आफ्टर यू विल बी सॉल्विंग बाय योर ओन, इज इट क्लियर एवरीवन चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द बिट नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग बिट नंबर 5, सवाल वेरी इजी, चलो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, अगेन आई सेड याद नहीं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री को निकालो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 5 इंटू 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 जो होता है cos 60 डिग्री वही हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर, चलो राइट, प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec का वैल्यू पता नहीं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डूइंग लाइक यू, आई एम डूइंग एज ए स्टूडेंट, हम टीचर जैसे नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट जैसे कर रहे हैं, sec का 30 का वैल्यू ही नहीं पता हमें, sec 30 का वैल्यू नहीं पता, cos 30 का वैल्यू भी नहीं पता, अगर cos 30 का वैल्यू नहीं पता, cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है √3/2, sin 60 डिग्री इज √3/2 चिल्ड्रन, सी sin 60 डिग्री इज √3/2, बट cos 30 डिग्री विल बी अगेन √3/2, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, बट वेन एवर आई विल बी कमिंग टू द sec 30 डिग्री ये कुछ अपोजिट हो जाएगा 2/√3, बिकॉज अपोजिट हो जाता है ना, इनके सब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को देखो, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos का क्या होता है इनके सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखो b/h, b/h, cos sec में जो आता है h/b हो जाता है ना बच्चों, h/b, सिमिलर इन दिस वे 2/3 विल बी 2/3 √3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर, देन आफ्टर 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं पता sin 60 डिग्री का पता करो, sin 60 √3/2,
ओके cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, कम ऑन एनीवन कैन से मी cos 30 डिग्री क्या होगा, वेरी इजी, √3/2 होल स्क्वायर, राइट। आफ्टर सी 5 into 1/4, right, plus see 4 into 4/√3 into √3 which is all about a 3, right। अरे भाई 2 into 2 स्क्वायर है ना, 2 into 2 4, √3 into √3 is all about a 3, -1 will remain the same, over here is 1/4 plus 3/4, सो 4 + 4 कैंसिल, कुछ इस प्रकार का आएगा बच्चों 5/4, 5 गुना 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 3 plus 1 plus 3, 4/4 is all about a 1, so which I don't need to write 1, so over here I have got something like that is all about 4 and 3 LCM, 4 and 3 over here is also nothing is there, 4 and 3 LCM is 12, right, 12, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का 12 3 15 मिल जाता है यहाँ पर, नहीं 12 3 15 प्लस 4 12 3 4 32 64 यहाँ पर कुछ 12 -12 विच इज ऑल अबाउट 79 -12/12 which is all about 67/12 is the answer. So the correct answer is all about 67/12 is the answer. I think the concept is pretty clear to you my dear children, right? अच्छा, let us start with very another question number 3 random ask. ये वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में बेटा, 2 मार्क का पूछा आता है, कमिंग इन बोर्ड एग्जाम, important questions, right? अच्छा, the most important question that is all about number 3 लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद end of the show. All right, see number 3, very important concept is all about number 3. Oof, marker is so dark, you know. अच्छा, नंबर 3 का क्वेश्चन देखो बेटा, देखो नंबर 3 is all about over here is saying that number 3 question very important, tan a plus b, see children, tan a plus b equals to √3 as well as tan a minus b. Tan a minus b is all about, in the question it is given that is all about 1/√3, find and b. बहुत इजी या डिफिकल्ट, बहुत इजी, बट ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन चिल्ड्रन, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। आई रिपीट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीटी वेल। अगर नहीं आता पॉज करो, अगर सॉल्व नहीं भी करना आता है, आई एम देयर विथ यू, बट आफ्टर सॉल्विंग इट प्रॉमिस टू योरसेल्फ 5 बार तुम्हें कॉपी में करना है। अगर 5 बार कॉपी में करोगे तो ही ये वाला एग्जाम में तुम ठीक कर सकते हो। कैसे होगा देखो बेटा, सी लॉजिक बताओ, लॉजिक, tan a plus b equals to √3 in which क्वेश्चन में दिया गया है वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल मींस विच इज ऑल अबाउट 90 डिग्री, बिलो ऑफ 90 डिग्री होना चाहिए। देखो tan a plus b, कैन आई डू इन दिस वे, tan a plus b इक्वल्स टू √3 इट इज गिवन। √3 किसका होता है बेटा, √3 होता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री √3, इज इट क्लियर। 60 डिग्री कैसे होता है बेटा, देखो 60 डिग्री साइन इज ऑल अबाउट, साइन 60 डिग्री 1 साइन 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, √3/2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू इज ऑल अबाउट √3/2, cos 60 डिग्री वैल्यू इज ऑल अबाउट व्हाट 1/2, सो 2 गेट कैंसल, बिकॉज tan का क्या होता है बेटा, एज आई सेड बिफोर, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन 2 गेट √3, तो आई हैव गॉट समथिंग लाइक दैट 60 डिग्री, 60 degree, tan 60 degree is all about a plus b over here, which is all about equation number 1. Equation number 1 कर लेते हैं. Then after tan a minus b equals to 30 degree. Equation number 2. 30 डिग्री में tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये 1/√3. कैसे पता चलेगा, नहीं आ रहा पता लगाओ बेटा, देखते हैं कैसे होता है. अगेन sin 30 डिग्री वैल्यू इज ऑल अबाउट बेटा 1/2 अपॉन tan cos क्या होता है ना, cos, हाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2. So cut 2 cut which is all about 1/√3. 1/√3 is all about 30 degree. Then after solving equation 1 from 2 or solving equation 1 and 2 we get. Solving equation 1 and 2, equation 2 we get क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर
ए प्लस ए 2a मिला, 2a मिला, प्लस ए माइनस बी कैंसिल हो गया, विच इज ऑल अबाउट एडिंग, एडिंग इक्वेशन नंबर, एडिंग करते हैं, चलो एडिंग करते हैं, एडिंग वी हैव टू एड, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get a plus a which is all about 2a minus b plus b कैंसिल हो गया, 60 plus 90 is all about 90, 60 plus 30 is all about 90, a मिल गया बच्चों 90 divided by 2 which is all about 45, a का वैल्यू मिला 45, b का वैल्यू हमें कैसे पता चलना है, b का वैल्यू, कैन एनीवन से b का वैल्यू क्या होता है, एनीवन कैन से b वैल्यू इज अ होमवर्क, b वैल्यू इज अ होमवर्क, राइट, b का वैल्यू, a का वैल्यू 45 मिल गया, b का वैल्यू कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पर 60 डिग्री इट इज गिवन, लेट्स से अंडरस्टैंड 60 डिग्री, 45 मिला यहाँ पर, राइट, 15 मिलेगा b का वैल्यू, कैसे देखो, लेट अस अंडरस्टैंड tan a प्लस b 60 डिग्री, tan 45 वैल्यू वी गॉट 45 डिग्री प्लस b इज ऑल अबाउट 60 डिग्री, that means b is all about 60 minus 45 is all about 15 degree, आई बात समझ में, b is all about 15, that therefore b is 15 degree। अच्छा, if b is 15 degree, यहां पर भी देखते हैं, अगर तुम बोलोगे सर a plus b, a minus b को तो करके देखो, a minus b को भी करते देते, कोई बात नहीं, चलो a plus b, अच्छा यू माइट बी से a plus b कर रहे हो, माइनस b क्यों नहीं कर रहे, a minus b भी करते हैं, चलो ये अपना स्टाइल है, अपना स्टाइल है, ये अपना स्टाइल है, देखो क्या होता है बेटा, देखो a equals to a upon a minus b, a minus b equals to 30 degree, equation 2 which has been given, tan a value is given 45 degree in the question, we have taken out 45 degree minus b is not given to us 30 degree, then after बेटा b वैसे ही रह जाएगा 30, सॉरी हाँ 30 minus 45 माइनस b रहेगा यहाँ पर, माइनस b को 30 minus 45 which is minus 15, माइनस माइनस कैंसल, 15 b यहाँ पर 15, तो ऐसे करो b का वैल्यू 15 निकला, therefore a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15, बात खत्म यहीं पर। बाकी का जो है नंबर 4 ट्रू फॉल्स फॉर अस वो अपने आप करना है। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ इश्यूज, यू कैन आस्क मी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, yes, I have forgotten to say something. Yes, how can I forget? At the end, I want to say something to you all people, which I always used to say, but I cannot say anyway, any time in my offline classes. But I want to say everyone, हमेशा एक बात छुपा रहता है दिल में जो हम हमेशा बोलना चाहते हैं तुम्हें, that is all about छुपा के लिखा रहे हैं हम तुम्हें। Thank you I want to say to everyone for being supporting me, for motivating me, for cooperating me, and this is all I want to say. Thank you very much my dear children for your tremendous effort, for motivating me, and for that reason I am waking up every night and I am doing such small work for you all people. So thank you all your supports, and I will be bringing more better content for you, and 8.3 is coming soon. Thank you, cheers. And not only that, important question बहुत भाई लगाने वाले हैं हम, important question जो बोलेंगे बोर्ड एग्जाम में वो आने वाला है, एक ये गारंटी नहीं आएगा, सच का बात है। चलो till then cheers, take care.